Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Pisces Ascendant and how the month of September 2022 is going to pan out for the Pisces Ascendant people. So for them, the Ascendant Lord passing through Ascendant is an excellent position which will continue to occur in the month of September. Pisces ascendant people are peace lovers, and a lot of seers are born in this ascendant, as Pisces ascendant itself denotes spirituality, and these people can make a lot of progress on the spiritual front if Jupiter is well placed in their birth chart. Jupiter's seventh aspect is going to provide an opportunity for the Pisces ascendant people to start your own venture or business, and will also protect their progeny through its fifth aspect and their luck through the ninth aspect. So overall, till the time Jupiter is placed here in the ascendant, Pisces ascendant people are going to have a very good time until April 2023. Jupiter stationed in the first house will continue to bless them through its significations. Sun is going to pass through its own house in the sixth house till 16th of September. So this is a very good placement for people trying for government jobs, and from the middle of August, from the time Sun moved here to the middle of September, Sun will provide them an opportunity to succeed in competitive exams. And if they are aiming for government jobs, then this is a good time for clearing the path. Mercury is stationed in its own house in seventh. So Lord of seventh in the seventh house and getting the seventh aspect of Jupiter is making the seventh house extremely powerful. It is a good time to enjoy the company of your spouse if you are married, and this is also a very fruitful time for people who are single and looking for a relationship or planning to get married. Rahu in the second house will continue to dent the finances and is going to disrupt your speech. It may give you a weird mouth and gum diseases like pyorrhea. Rahu is going to transit through the constellation of Venus, and Venus itself is passing through the sixth house. So you need to watch out for your speech when you are talking to family members or people who are nearer and dearer to you, because this Rahu will make sure that your speech is going to hurt the other person and you may get into a nasty fight with them in the month of September. So just be very careful and think twice before you speak something. Ketu is going to be stationed in the eighth house, and this is going to create disenchantment with your family members of your spouse. Let us look at Venus also. Venus is the lord of eighth house and third house for the Pisces ascendant people and will be transitioning through the sixth house in the month of September. This is not a good position, especially for the health related matters. This placement shows pain and suffering because of the disease. So if you are a big shot, you are an employer and you have a lot of servants at home and employees in your offices, then this also showcases problems because of these people, that is servants and employees. If you are a landlord or a house lord, then some kind of a trouble is also seen through your tenants in the month of September, so please do watch out for that. The eighth house lord placed in the sixth house means that you have to engage yourself in physical activities like a gym or a regular jogging or morning walk in order to keep your health in a better situation. So if you already are engaged in these activities, then it is good enough for you. But if you are not, then during this transit of Venus, if you engage in those activities, it will be extremely helpful for you to overcome these scenarios. Now, there are also certain dates when a person needs to be very careful in the month of September. For Pisces ascendant people, these dates are 1st and 9th of September, 9 and 10th of September, 23rd and 24th of September, and 27th, 28th, and 29th of September. These are the dates when the Pisces ascendant people need to be very careful and avoid taking any key decision. Overall, this very benefic placement of Jupiter in the ascendant is driving the Pisces ascendant forward, and month of September will continue to be fruitful for them. So this is the summary for the month of September. If you have liked my video, please do subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मीन लग्न वालों के लिए सितंबर 2022 का महीना कैसे साबित होगा।
यहाँ पर मीन लग्न वालों के लिए जो लग्नेश गुरु हैं वो लग्न से ही भ्रमण कर रहे हैं। जब भी लग्नेश लग्न से भ्रमण करते हैं तो ये बहुत अच्छा समय कहलाता है। यहाँ पर लग्नेश गुरु जो कि एक बहुत ही अच्छे ग्रह है मीन लग्न वालों के लिए, क्योंकि लग्न और दशम दोनों भाव के स्वामी हैं। दशम भाव के स्वामी का लग्न से जाना यानी कि आप कार्यस्थल पे अपने आप को कैसे पेश करते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न एक शांति प्रिय लग्न होता है और यहाँ पे बहुत से साधु संत जन्म लेते हैं, इसलिए ये लोग काफ़ी हद तक मटेरियल साइड की तरफ खिंचते नहीं हैं। इनका ज़्यादातर ध्यान साधना में, स्पिरिचुअलिटी में ही लगा रहता है, और ये लोग स्पिरिचुअल फ्रंट पे काफ़ी तरक्की भी कर सकते हैं अगर गुरु की स्थिति लग्न भाव में अच्छी है तो। यहाँ पे बैठा हुआ गुरु पांचवी, सातवीं और नवीं दृष्टि से आपके संतति को, आपके मैरिज या मैरिटल रिलेशनशिप को और आपके लक को प्रोटेक्ट करता रहेगा जब तक कि जुपिटर यहाँ बैठे हुए हैं अप्रैल 2023 तक। तब तक सारे मीन लग्न वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। एक नज़र सूर्य पे भी डालते हैं। सूर्य अभी छठवें भाव से गुजर रहे हैं और 16 सितंबर तक ये छठे भाव में भी बैठे रहेंगे। तो जितने भी लोग गवर्नमेंट सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हैं और काफ़ी समय से कोशिश में लगे हुए हैं, एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं, उनके लिए मिडिल अगस्त से लेकर मिडिल सितंबर तक, 16 सितंबर तक ये सूर्य काफ़ी अच्छा मौका प्रदान कर रहा है आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल होने का। और अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देते हैं तो उसको निकालने की भी प्रोबेबिलिटी आपकी काफ़ी हाई हो जाएगी। बुध सप्तम भाव से भ्रमण कर रहे हैं और सप्तमेश का सप्तम से भ्रमण और गुरु की सातवीं दृष्टि, ये बहुत ही मजबूत बना रहे हैं सातवें भाव को सितंबर के महीने में। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा आपका, आप अपने पति या पत्नी के साथ ये समय को एंजॉय कर पाएंगे। और अगर आप सिंगल भी हैं तो गुरु के सातवें भाव की वजह से चांसेस बहुत हाई हैं आपके शादी होने के, या आप अगर कोई रिलेशनशिप में एंटर करना चाह रहे हैं उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। राहु द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पे आपके फाइनेंसेस के ऊपर, आपके वाणी पे और आपके परिवार के साथ संबंधों पे छिद्र लगाने का कार्य करते रहेंगे। राहु सितंबर के महीने में शुक्र के नक्षत्र से गुजरेंगे जो स्वयं भी छठवें भाव से गुजर रहे हैं। तो इस बात की बहुत बड़ी संभावना है कि लोग आपके बोली हुई बातों से हर्ट हो जाएंगे और आपका उनके साथ कोई काफ़ी जोरदार झगड़ा हो सकता है। इसीलिए बहुत सावधान रहिए इस समय में, और जो भी आप सोच समझ के बोलेंगे उसी बातों से आपको फायदा होगा। एकदम से कही हुई बात सामने वाले को लग सकती है जिसकी वजह से आप पे परेशानी आ सकती है। यहाँ से जाता हुआ राहु व्यक्ति को मुंह से संबंधी समस्याएं देके जाता है, यानी कि दांत और मसूड़े, जीभ, ये सब चीज़ों से संबंधित कुछ भी ऊटपटांग बीमारी देने की क्षमता राहु यहाँ पे रखता है, और आपकी दाईं आंख को भी प्रभावित करने से पीछे नहीं हटेगा। केतु अष्टम भाव में बैठा हुआ है और यहाँ पे ये आपके परिवार के सदस्यों से, यानी आपके पति या पत्नी का जो भी परिवार है उन पारिवारिक सदस्यों से आपको काटता रहेगा यहाँ पर बैठ के। लेकिन अगर आप रिसर्च वगैरह करते हैं तो उसके प्लेसमेंट के लिए केतु बहुत अच्छा है, या अगर आप ज्योतिष में हैं तो उस लिहाज से भी केतु का ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी ऑकल्ट हो गया, ज्योतिष हो गया, एक तरह से स्पिरिचुअलिटी से ही जुड़े हुए हैं। तो ये समय उन लोगों के लिए अच्छा निकलेगा। एक नज़र शुक्र पे डालते हैं। शुक्र अष्टम भाव के और तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं मीन लग्न वालों के लिए, और ये छठवें भाव से गुजर रहे हैं। ये कोई हेल्थ के हिसाब से कुछ अच्छी पोजीशन नहीं कही जा सकती है। ये इस तरह का प्लेसमेंट व्यक्ति की दुख दर्दों को दिखाता है और किसी डिजीज की वजह से उनकी जो वेदना होती है उसको दिखाता है। अगर आप बड़े व्यक्ति हैं और आपके पास घर में नौकर चाकर हैं, या आप कोई बिजनेस करते हैं और एम्प्लॉयज़ आपके इसमें कार्यरत हैं ऑफिसेज में, तो ये सितंबर के महीने में थोड़ा सावधान रखिए, उनकी वजह से आपको तकलीफ हो सकती है। अगर आप मकान मालिक हैं तो किराएदार आपके लिए सितंबर के महीने में कोई समस्या खड़ी कर सकता है, इसलिए आप उस चीज़ों से भी सावधान रहिए। अष्टम भाव का स्वामी जब छठवें भाव से गुजरता है तो सेहत खराब करने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं रोज़ के लेवल पे, यानी जॉगिंग करने के लिए जाते हैं या जिम जाते हैं, तो ये समय में आपको फिर भी कम तकलीफ देखनी पड़ेगी उन लोगों के मुकाबले में जो इनमें से कोई भी चीज़ें नहीं करते हैं। और आप अगर ये चीज़ें करने लग जाएं तो भी आप देखेंगे कि आपकी पोजीशन में काफ़ी जल्दी सुधार आ जाएगा सितंबर के महीने में। अब ऐसे आपको दिन होते हैं जब चंद्रमा आपके 6, 8, 12 से जाके आपको परेशान करता है, मानसिक वेदना देता है। सितंबर के महीने में मीन लग्न वालों के लिए वो दिन है 1 सितंबर, 9 और 10 सितंबर,
23-24 सितंबर और 27-28-29 सितंबर, इन दिनों में आप सावधान रहिए और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना टालिए। ओवरऑल चूंकि आपका लग्नेश ही बहुत मजबूत स्थिति में है, तो मीन लग्न वालों के लिए अच्छा समय है। लेकिन मैंने आपको जितनी भी चीज़ें पहले बताई, अगर आप उन पर ध्यान देते हैं तो ये समय आपके लिए, सितंबर का महीना बहुत अच्छा गुजरेगा और आप किसी भी तरह के समस्याओं में पड़ने से बच पाएंगे। तो ये आपकी समरी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।